Hello my dear student. In previous class we have already discussed about two equation of motion, and in this class we will discuss another two equation of motion. In previous class we have already discussed two equation of motion. These are v is equal to u plus at and one is s is equal to ut plus r at square. In this class we prove another two equation of motion, that is third is v square minus u square is equal to 2as, and another is SMTH equal to u plus a by 2 whole into 2n minus 1. So in this class we will discuss or prove how can this formula and this formula is verified. So first I am देखो this equation. So देखो इक्वेशन रा हेडिंग हवा वेलोसिटी इन ए सर्टेन position, velocity in a certain position. So तमे तो velocity in a certain time पढ़ीचो. First equation v is equal to u plus at. In this case you study about velocity in a certain position, that is position संगे velocity रो relation कान रहबो. तो फर्स्ट हमें फर्स्ट क्लास रो जहाँ पढ़ीचो हमें जानवा अच्छे. we know that velocity in a certain time is equal to v is equal to u plus at, and in this equation we can be written v minus u is equal to at. This is equation 1. and हमें displacement अनवा अच्छे certain position means displacement अनवा अच्छे. So displacement अनवा अच्छे means हमें average velocity का formula माने पकड़ना. You know that average velocity is equal to total distance means x minus x0. and काली कुआ जाइथिला जे suppose this is an object in time 0 second, the object moving with initial velocity u and cover a initial distance x naught. This is the initial position of the object. After some time the body moving with t second with final velocity v and cover a distance x. Then changing displacement is final displacement minus initial displacement, x minus x0, t minus 0. Final time t, initial time 0. That means we have already discussed this formula in previous class. So instead of average velocity we can write initial velocity plus final velocity by 2. Average velocity means दुईटा velocity अच्छे दुईटा velocity plus करना और by करना to average बाहर जीवा is equal to x minus x0 by t. यार हमें v minus u रखी जो फर्स्ट इक्वेशन रे तामी ने रखमा v plus u जब रखी दुईटा इक्वेशन का हमें कंपेयर करी आरवा. तो v plus u is equal to 2x minus x0 by t. This is equation 2, and if we multiply these two equations then we get final answer, velocity in a certain position. So multiplying equation 1 and equation 2 we get, first multiply करो LHS into LHS, that means v plus u into v minus u is equal to RHS into RHS करो. तो इन RHS होचे 2x minus x0 by t into इन RHS होचे 80 t cancel. That implies we can be written as, suppose this is let a and this is b, then v a plus b whole into a minus b is a square minus b square. Can you already जानी छो. So हमें v plus u means a plus b, v minus u means a minus b is equal to a square minus b square. That means b square minus u square. B square minus c square लिखी पारबो a plus b whole into a minus b. Then this is 2
x minus x0. Let this equation is 2 and this is represent that velocity in position relation or displacement relation. If we compare this velocity with distance relation, then it can be written as x minus x0, final displacement minus initial displacement. It changes displacement, so both that is s. So this equation is true. So बहुत सहज our last equation देखो distance travel by uniform accelerated body in n second. So first we must be know about the nth second. What is the meaning of nth second? So nth second means काना टी भल करी बुझो. nth means काना और n means काना. तो से जिनिस बुझेबा पूर्वरु मु दुईटा जिनिस कहूचे जे जदि तीनटा पिला थिबे चारटा पिला थिबे चारटा पिला थिबे नंबर ऑफ बॉयज इज 4 किंतु जदि हम फोर्थ नंबर ऑफ बॉय के पचरे मा बोले ओनली से का के रिप्रेजेंट करबा जेन बॉयटा तम 4 नंबर पोजीशन रे रहउची से बॉय के ही तम फोर्थ रिप्रेजेंट करबा किंतु खाली 4 लेखमा बोले से टोटल चारटा बॉय के रिप्रेजेंट करूची और खाली फोर्थ लेखमा मींस से खाली 4 नंबर रे थिबा बॉय के रिप्रेजेंट करूची बुझो छे जेंदा कि तम क्लास रे फर्स्ट हेले के सेकंड हेले के थर्ड हेले के बुझा जैसी तो सेकंड हेले के मींस से सेकंड पोजीशन रे थिबा पिला को ही सेकंड हेला कहबो थर्ड हेले के बोले से थर्ड पोजीशन रे थिबा पिला को ही हमें थर्ड कहमा किंतु 3 मींस तीनटा पिला के बुझाबो किंतु थर्ड मींस थर्ड पोजीशन रे जेन पिला আছে ताके बुझाबो एरा ऑलरेडी तमे जानिछो कॉमन थिंग सिमिलरली nth मींस nth नंबर पोजीशन रे nth नंबर टाइम रे जेन बॉडी अछि तार पोजीशन के बुझेबो और n मींस टोटल टाइम के तमे नहीं पारबो किनु nth मींस ओनली से n पोजीशन रे जेन टाइम का कंसीडर हिचे से टाइम के ही नहीं पारबो और से डिस्टेंस के नहीं पारबो सो देखो हमें सपोज जरूरी कंसीडर करमा द ऑब्जेक्ट इनिशियली से 0 सेकंड रे जाउ छे सपोज तार इनिशियल पोजीशन होचे x0 after some time suppose after 1 second the body cover distance s1 and reach at b point and another 1 second the body cover distance c point that means this another 1 second is from b to c that means this time is second for b to c we consider the time is second from initial point to c the time will be considered as 2 seconds but from b to c the time is considered as second clearly बुझलो क्लियरली मु बुझाबा जे कारा चौचे जे हमें जानिछु बॉडी पूरा इनिशियल पोजीशन रु ही मूव करूची सो इनिशियल पोजीशन रु बॉडी मूव करवा टोटल टाइम लागला 2 सेकंड किंतु जदि सेकंड रे बॉडीटा मूव करूची फर्स्ट सेकंड रे बॉडी 0 रु b आसला सेकंड रे बॉडी b रु c आसला तो सेकंड रे बॉडी त तम मूव करूची b रु c किंतु से सी पॉइंट के आसबा का जे टोटल टाइम 2 सेकंड ही लागबा बिकॉज़ 0 रु b आसुचे 1 सेकंड b रु c आसुचे 2 सेकंड दैट मींस 0 रु c पॉइंट जाय आसबा का जे बॉडी को टोटल 2 सेकंड ही लागबा किंतु से 2 सेकंड ता टोटल कथि यूज होची किंतु खाली 2 सेकंड रे हमर बॉडी पोजीशन जाकमा बोले से 2 सेकंड केन भीतर बॉडी पोजीशन के देखोची 0 रु b 1 सेकंड रो बॉडी पोजीशन के देखोची 1 second that means इटा का हमें कहमा first second then b रो c second body position और एक एग्जांपल दो छे देखो जे when this body cover at c distance then after third second in third second the body cover d distance the body cover d point
So in this case, the distance covered by the body is represented with s third. In this case, the distance covered by the body is represented with s second. That means third second रे बॉडी टा जाउची c ru d. किंतु तमे देखो बॉडी पोजीशन तमर इनिशियल पॉइंट रु ही केते दूर जाउची हमें देखि पारमा, किंतु एक्चुअली देखो बोले 0 रु 1 सेकंड रे बॉडी ई पोजीशन रे थिला, b रु c से सेकंड पोजीशन रे थिला, सेटा के पोजीशन ऑफ द बॉडी फ्रॉम b टू c इज सेकंड s सेकंड. देन c रु d के बॉडी जीवा के तम 3 नंबर सेकंड लागुची, किंतु एटा मोला थर्ड का देखि बिकॉज़ थर्ड बॉडी रो पूरा c रु d के रिप्रेजेंट्स करूची. जदि हम इन जदि 3 सेकंड ओनली कोइ थांतु बेले बॉडी तम 0 रु लास्ट के d पॉइंट सॉरी बॉडी o पॉइंट रु d पॉइंट जाय टोटल टाइम टेकन करूचे 3 सेकंड से जेते बेले 0 रु 8 जेते बेले से o रु d पॉइंट के जाउचे. तो o रु d पॉइंट के जीवा के टोटल टाइम आगे 3 सेकंड लगला बिकॉज़ o रु b के जीवा के 1 सेकंड, b रु c के जीवा के तमर 2 सेकंड, c रु d के जीवा के 3 सेकंड. सो टोटल o रु d के जीवा के बॉडी के लागला 3 सेकंड, किंतु एक्चुअली 3 सेकंड रे से बॉडी रो पोजीशन के नो केने के थिला c रु d. तो एक्चुअली बॉडी रो पोजीशन के जदि हमें नमा 3 सेकंड रे केते रहउचे तो जणा पड़ुचे c रु d. तो सेटा के टाइम विल बी कंसीडर्ड एज थर्ड एंड डिस्टेंस विल बी कंसीडर्ड एज थर्ड s third. किंतु इन दिस केस द बॉडी कवर फ्रॉम o to d in total time 3, then the distance is considered as 3. So if we want to calculate the position of the body as third, then how can we calculate? Suppose the body in this case the body cover from o to d in time 3 seconds, so total distance is s3, so total distance is s3. And if we different or subtract the total distance to OC, that means OC is the distance between the body, OC is the distance traveled by the body in 2 seconds, that means this distance is considered as h2. So total s3 distance रू हम जदि h2 distance को माइनस करना बेला हम का पाएमा थर्ड डिस्टेंस पाएमा. मतलब देखो o रू d जाय बॉडी टोटल टाइम रिक्वायर करूचे 3 सेकंड रे कवर करूचे. o रू c जाय एज पर माय डायग्राम o रू c जाय बॉडी केते टाइम रे जाउचे 0 रू b 1 सेकंड, b रू c 2 सेकंड. दैट मींस टोटल o रू c जाय से 2 सेकंड रे जाउचे. सो o रू c जाय displacement cover in 2 seconds, so h2 we can retain h2, but actually 2 seconds second can जाउची b रू c. तो in this case displacement is written as from b to c is s second. किंतु एक्चुअली बॉडी का आमे पोजीशन ता ओरिजिनल पोजीशन रु देखमा, तो ओरिजिनल पोजीशन रु c सेकंड की जीवा का बॉडी को 2 सेकंड लागुची. तो डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बॉडी फ्रॉम o to c is h2 because it covered in 2 seconds. But in this case the body actually cover b to c in second. So in this case b to c we can return s second, but initially if the body cover from o to c then in 2 seconds, so initial position जदि हमें नंबर बोले h2 लेना. So what is the difference between h2 and s second? We clear? Then when s देखमा जे हमें टोटल s3 डिस्टेंस लो s3 का कहली because in this position the body cover from o to d in 3 seconds, so distance can be written as s3.
आमे देखा जे सी रु डी जाय डिस्टेंस केते तो सी रु डी जाय बॉडी एक्चुअली थर्ड टाइम रे जाउछे थर्ड टाइम रे जाउछे टोटल डिस्टेंस तो से 3 सेकंड रे जाउछे किंतु सी रु डी जाय आमे 3 सेकंड रे जाउछे किंतु तार पोजीशन हिसाब थी से एक्चुअली सी रु डी जाय 3 सेकंड रे ही जाउछे तो पोजीशन हिसाब से हमें थर्ड रखना so c to d जाए distance covered by the body is 3 third s third so this value can be obtained by the subtracting of s3 and h2 because ধর এটা হচ্ছে বাড়ি এই বাড়ির টোটাল ডিসটেন্স যদি s3 আছে আর একটি ডিসটেন্স যদি s2 আছে তাহলে এই ডিসটেন্স আমি কেন হিসাবে পাইলাম total body ru total s3 ru ame s2 ke kati dama so in this case also the body cover from o to d in 3 seconds so total distance is s3 then the body cover we want to calculate this distance at start that means from c to d so we must be subtract this value from s3 ru jodi ame subtract korna etki value ka ke bujhoche the time cover the body cover from 0 to c in 2 second so एतकी वैल्यू तमा h2 के बुझोचे 2 सेकंड कवर करूचे तो h2 के बुझोचे किंतु एक्चुअली 2 सेकंड से b रु c के कवर करूचे एक्चुअल पोजीशन हिसाब से देखबो बेले तम s सेकंड होचे b रु c किंतु टोटल 2 सेकंड रे तमर बॉडी कवर करूचे 0 रु c तरा का मैं h2 धरलु सो s3 रु जदी हम h2 के काट मारले का पाएमा ई s थर्ड पोजीशन रो बॉडी पोजीशन हमें पाएमा Similarly, if we want to calculate s second position, then how can we get? That means s1, s2 minus s1. जेते नंबर पोजीशन ने तमर देखो भल कर बुझो जेते नंबर पोजीशन ने तमर बॉडी डिस्टेंस जानबा अछि जेते टाइम ने तमर बॉडी डिस्टेंस जानबा अछि टोटल डिस्टेंस कवर बाय द बॉडी इन दैट टाइम माइनस लोड टाइम ई पोजीशन में तुम बॉडी वैल्यू जानबा अछि सो टोटल डिस्टेंस कवर बाय द बॉडी इन दिस टाइम मीन माइनस लोड टाइम सिमिलरली if we calculate the total distance covered by the body in n second that means the total distance covered by the body in n second केता आबा जानबा then s देखो तार जहां भी तुम हायर कैलकुलेट करूछो तार लोअर जेते कैलकुलेट करूछो सेते माइनस तार लोअर नोछो इने भी देखो सेकंड रे कैलकुलेट करूछो सेकंड माइनस तार लोअर नेलो इने भी n रे कैलकुलेट करूछो n माइनस तार लोअर ने बोले केता n - 1 so this is your formula the time covered by the body the distance covered by the body in ns second is ns is equal to sn minus 1 तो ये फार्मूला के बेस करी हमें बाहर करना ये जदी नहीं बुझबा पहले हल करी वीडियो के पॉज कराओ रिपीट देखो बुझी पारबा so suppose this is the point o the body travel at this point in t is equal to n minus 1 second and distance cover if the body travel from o point to this point in time n minus 1 second the distance cover is sn minus 1 then if the body finally travel this point in t is equal to n second जो तम डिस्टेंस जाउछे तला हम लिखि पारमा s n क्लियरली बुझलो एबे हम बाहर करमा जे ई भितरे बॉडी रो डिस्टेंस केते तो ई भितरे एक्चुअली बॉडी केते डिस्टेंस रे जाउछे ए केते टाइम रे जाउछे n सेकंड रे जाउछे तो ई नाम लिखि पारमा ns सेकंड रे जाउछे तो ns सेकंड रे जाउछे तो डिस्टेंस केते हबा s n हबा कि देखो n सेकंड रे बॉडी तम टोटल डिस्टेंस कवर कला किंतु ता पोजीशन हिसाब से देखमा बेले से केते रु केते जाउछे ई पॉइंट टू ई पॉइंट के जाउछे ns सेकंड रे तो ता डिस्टेंस हमें केते ना sn अब फार्मूला एटा तो तमे फार्मूला के माने रखबो जे द डिस्टेंस ट्रैवल
by the body in nth second रे जाउछे तो Sn इज इक्वल टू जेन सेकेंड रे जाउछे से पूरा टोटल टाइम का 3 सेकेंड रे जाउछे बोले 3 लागबा किंतु तार पोजीशन हिसाब से आड़े लागबा था सिमिलरली n सेकेंड रे जाउछे बोले n किंतु तार पोजीशन रो डिस्टेंस दरकार देखो n सेकेंड रे जाउछे बोले टोटल डिस्टेंस Sn हला किंतु तार पोजीशन रो डिस्टेंस ओनली दिस डिस्टेंस सो n सेकेंड रे जाउछे nth नंबर माइनस s ता गोटे डिस्टेंस कमे दबो n - 1 एबे जस्ट कहली तो फर्स्ट हमें काना करमा सब डिस्टेंस का हमें बाहर करमा और तापर वैल्यू पुट करमा देन वी गेट द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बॉडी इन nth सेकंड सो we know that the formula s is equal to ut plus half at square which is represent the distance traveled by the body in t second so first हमें से स्टार्ट करमा the distance traveled by the body in t second the distance traveled by the body in t second is s t is equal to ut plus half at square हमें सब डिस्टेंस रो सब ई दुईटा डिस्टेंस रो वैल्यू हमें जानमा जे n सेकेंड रे तमर डिस्टेंस केते हेबा देखो इन n सेकेंड डिस्टेंस ट्रैवल by the body is Sn is equal to ut t जगह पे n सेकेंड पुट करबो प्लस हाफ a t जगह रे n स्क्वायर सिमिलरली इन n - 1 सेकेंड अभी दरकार इन n - 1 सेकेंड डिस्टेंस ट्रैवल by the body is Sn - 1 is equal to u t जगह पे केता लगबो n - 1 ut plus half t स्क्वायर जगह पे केता लगबो n - 1 रो होल स्क्वायर हला एबे हमें बाहर करमा एबे फाइनली हमें बाहर करमा आंसर त बारी जीवा तीना फार्मूला यूज करमा Sn रो वैल्यू पाई गलो Sn - 1 रो वैल्यू पाई गलो एबे Sn ते आराम से पाई जीवो आ वैल्यू बहुत सहज है खाली फार्मूला बुझेबा का जे मुई एते गुडा जिनिस कहबा के पड़ला जेन पिला जदी बुझी नहीं पारलो से पिला खाली फार्मूला के मन रखिथिबो आ ई दुईटा वैल्यू तो आराम से लिखि पारबो किछ नहीं ना बिकॉज़ s = ut plus half at square तो n सेकंड रे t जगह ती n पुट हेबा n - 1 सेकंड रे t जगह ती n - 1 पुट हेबा n - 1 सरला तो फार्मूला करेक्ट बा एबे हम इनो वैल्यू पुट करो Sn th रो वैल्यू बाहर जीवा तो देखो बाहर को दो हम डायरेक्ट लिखि देबी ना किछु असुविधा नहीं ना देखो Sn th is equal to Sn जगह ती केते लिखबी एबे जस्ट कहली we know that ut is equal to half plus at square into Sn जगह ती t जगह ती n t जगह ती n this value minus Sn - 1 this is also displacement in this case also we written that ut plus half at square s जगह ती लिखि पाम किंतु इने t जगह रे केते होचे n - 1 सेकेंड रो डिस्टेंस सो t जगह रे n - 1 पुट करो इने भी t जगह रे n - 1 रो होल स्क्वायर जेना ऑलरेडी बाहर करो पुट करबो मो डायरेक्ट लिखि दोछे सॉल्व करो इटा के आंसर ऑलरेडी बाहर जीवा सॉल्व निजे देखो हम वैल्यू पुट करमा किछ नहीं ना Sn is equal to u n plus half n square minus u n - 1 plus half a
a minus b whole square पके दियो a square plus b square means 1 minus 2ab, so that implies un plus half n square minus u into n u n u enter un minus u plus half n square plus half a, then minus half a n to n, is 2 to cancel, then is minus half a n minus half a n. That implies solve करो एबे तुम ब्रैकेट तो भांगी वाला सब बोधे एबे पूरा ब्रैकेट भांग दियो, so un plus half n square minus un plus u plus minus minus half n square minus plus minus half a minus plus an ठीक अच्छे, तो जहाँ जहाँ कटुचे कटे दियो प्लस un माइनस n प्लस हाफ माइनस तापरे आउ सब कटला u हाफ un हाफ n, तो जहाँ बचला लिखी दियो, तो बचला देखो u बाहर कर चुका है SNPH, तो बचला u प्लस u माइनस हाफ u माइनस हाफ a plus a, that means common SNPH is equal to a अच्छे a by 2 common a by 2 जदि हमें common नमा ले रहबा देखो इनो केते इनो देखो a by 2 common गले इने रहबा minus 1 plus इने रहबा n 2n रहबा 2n because a by 2 common जेत तो लेने 2n रहबा plus 2n, that means इरा सोजे कर लिखमा 2n minus 1 सरला देखो ये बहुत इंपोर्टेंट है, ठीक भल कर देखो जे a रोची, तो जदि हमें a by 2 के कॉमन नमा लेकिन तो -1 ही रहबा रहला इने n अच्छे, तो इने जदि मैं 2n लिखले ही a by 2 से मल्टीप्लाई ले 2 कैंसिल हो जिवो आउट रे n के n हो, तो दिस इज इक्वेशन सरला। एबे हमें कैलकुलस मेथड यूज करी केतरा डिफरेंशिएट यूज करम, जाना कि तुम परीक्षा रे पढ़सी प्रूफ equation of motion by using calculus method, that means integration and derivative. तो एबे प्रूफ करबो, प्रूफ equation of motion by using calculus method, that means by the help of integration and derivative आमे बाहर करम। ये परीक्षा में पचरे से कोन होथिबो जे तुमके दीदीबा s is equal to ut plus half at square प्रूफ करो by using calculus method, इस डिफरेंशिएट यूज करके बाहर करबो। तो फर्स्ट हमें तो इक्वेशन जान लो, फर्स्ट इक्वेशन होचे v is equal to u plus at, सेकंड इक्वेशन देख लो s is equal to ut plus half at square, थर्ड इक्वेशन देख लो b square minus c square is equal to 2as, then fourth equation देख लो u is equal to Sn is equal to fourth equation in लिखो Sn is equal to u plus a by 2 2n minus 1,
ये चारटा जाक इक्वेशन तुम देख लो। अब ये चारटा इक्वेशन के हमें प्रूव करबा बाय यूजिंग कैलकुलस मेथड, दैट मींस बाय यूजिंग डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन। तो फर्स्ट हमें देखमा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज velocity in a certain time। देखो तुम से ना एवरेज वेलोसिटी रो फार्मूला यूज करथिलो, बट मन रखिथिबो इन केस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव और कैलकुलस मेथड वी ऑलवेज यूज इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। दैट मींस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव में हम इंस्टेंटेनियस ही वेलोसिटी स्पीड एक्सेलरेशन रो फार्मूला यूज कर। तो आम इन वेलोसिटी बाहर करमा, तो वेलोसिटी जब बाहर करमा बेले आम बाबू कार नु बाहर करमा, वेलोसिटी टाइम डिवाइड कले क्या आसबा एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन आम डिराइव कर। सो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी इन is given by a is equal to dv upon dt, a is equal to dv upon dt, that implies dv is equal to a dt, and we can calculate the velocity। so integration देवा पूर्व लिमिट देखो, for time is equal to 0 second velocity is u, that means at initial time the velocity is u, because हम इन्हें v रो इंटीग्रेशन दमा, v रो लिमिट और इन्हें टाइम रो लिमिट दमा। सो दुटा लोग लिमिट आगे देखना। अब for time is equal to t second the velocity, the final velocity of the body is v। then अब हम इधर के इक्वेशन 1 दो और कहमा इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 1, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 1 with proper limit, that is dv रो इंटीग्रेशन देबो u to v, because initial velocity 0 second रे u আছে और final 3 second रे v আছে, final velocity is equal to, in this case integrating time रखा है initial 0 time रे u velocity, t time रे v velocity, integrating a dt। देखो तुम मन रखो वेलोसिटी बेले वेलोसिटी टाइम डिवाइड कले एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन रो फार्मूला रो आंसर डिराइव होबा। तो एबे तमर v जीवा, देन लिमिट इंटीग्रेशन करला पर आके पले तुम जाई तो ds रो इंटीग्रेशन x, सिमिलरली dv रो इंटीग्रेशन v, देन इंटीग्रेशन करला पर लिमिट आके पड़े इज इक्वल टू, इन दिस केस a इज कांस्टेंट, देन dt रो इंटीग्रेशन t हवा तुम जाई छ t टी देखो इनर काजे खाली ब्रैकेट बनेबा, बाकी काजे की इतर काजे खाली इंटीग्रेशन करू छ, इतर ने खाली इंटीग्रेशन हवा, तो खाली टी हवा मींस ए बाहर रहबा, ए तो कांस्टेंट बाहर जीवा, तबरे dt रो इंटीग्रेशन टी और इंटीग्रेशन कटला पर स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल लिमिट आके आसे 0 to t। दैट इंप्लाइज दिस वैल्यू कैन बी रिटन एज हायर लिमिट लोअर लिमिट पुट करो, यानी v minus u is equal to a, इन भी t जगह हायर लिमिट लोअर लिमिट पुट करो t minus 0, that is v minus u is equal to at। this is equation 1 which is derived by using calculus method or integration of derivative। then हमें आउट इक्वेशन बाहर करना s is equal to ut plus half at square। देखो के हिसाब से भारी बा, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ये जे distance or displacement in a certain time। तो डिस्प्लेसमेंट डिवाइड करले क्या आसबा वेलोसिटी आसबा, बोले इन हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी रो डिराइव करबा। जो बार बार कहू छे जे कैलकुलस मेथड बा इंटीग्रेशन डेरिवेटिव यूज हवा, मींस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन माने यूज हवा, मन रखिथिबो। तो इन तम सेकंड इक्वेशन ने तुम डिस्प्लेसमेंट बाहर करबा আছে। सो देखो वेलोसिटी बाहर करबा আছে বলে কেন ডিরাইভ করলো বাই টি করলো, তো एक्सेलरेशन रो डिराइव होला इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। डिस्प्लेसमेंट बाहर करबा আছে बाई टी करो काना दबा वेलोसिटी, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी रो डिराइव हो।
तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी of the object is given by v is equal to ds upon dt, that implies ds is equal to v dt. v dt হলো এবং আমাকে ডিসপ্লেসমেন্ট অফ ভ্যালু দরকার, তো ডিসপ্লেসমেন্ট অফ ভ্যালু যেহেতু আমাকে দরকার ডিসপ্লেসমেন্টটা আমি একলা রাখলু এবং আমি ইন্টিগ্রেটিং করবা পূর্বরু ডিসপ্লেসমেন্ট র কাজে লিমিট ইউজ করমা, টাইম র কাজে লিমিট ইউজ করমা। তো ইউজ করা বাবু মানে যে in time is equal to 0 second displacement will be considered as 0 second में तुम्हारा बॉडी डिस्प्लेस ही नहीं दिखाई because से बॉडी का origin ना थी ना, so 0 second में displacement is considered as 0. Then in time t second the body cover distance or displacement suppose s cover करा। तो अगर हमें टाइम रो लिमिट भी जान लो, डिस्प्लेसमेंट रो लिमिट जान लो, अब इंटीग्रेटिंग करो कोई प्रॉपर लिमिट, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 1 दी दबो, इक्वेशन 1 कोई प्रॉपर लिमिट इफेक्ट वी गेट। हाँ आउ एक जिनिसटा मन रख जे इन तुम डिस्प्लेसमेंट बाहर कर तो डिस्प्लेसमेंट लिमिट यूज हेबा ही हेबा बा इंपोर्टेंट है। तो इनिशियल टाइम में तुम डिस्प्लेसमेंट के धरो कंसीडर करो 0, तो फाइनल टाइम में डिस्प्लेसमेंट धरो s के s इने तुम लिखि दितो इनिशियल टाइम में डिस्प्लेसमेंट x 0 फाइनल टाइम में x t। तो इने तुम इंटा लिखि भी चलबा 0 टाइम में तुम डिस्प्लेसमेंट 0 और t टाइम में तुम डिस्प्लेसमेंट s लिखि भी चलबा, नो प्रॉब्लम। तो डायरेक्ट लिखो ना, डायरेक्ट ही लिखो बही रे भी तुम डायरेक्ट दीचे। तो देखो हमें एबे काना करमा इंटीग्रेटिंग विथ प्रॉपर लिमिट वी गेट। हां तो लिमिट पुट करबा पूर्वरु तमर जेतु u t प्लस हाफ a t स्क्वायर a भी आसबा, तो a टर्म संग बाके जे v के कैटेगरी देखो सेकंड इक्वेशन को प्रूव करबा আছে a is equal to u t plus half a t स्क्वायर, तो a टर्म्स के बाके जे काना करी v के कैटेगरी v जगह की u plus a t लिखी तापर dt के dt এটা কি ইকুয়েশন 1 দিও। কিন্তু ইন্টিগ্রেশন টাইম লিমিট রাখা যায় আর ডিসপ্লেসমেন্ট লিমিট রাখা যায় খালি হবা যেহেতু ইনে d লাগিছে ও ইনে d লাগিছে। তো v के काजे कटेलो जेतु फार्मूला ने a আছে a हमरा काजे v के कटेलो v जगह की u plus a t लिखी। अब इंटीग्रेशन दियो ds 0 ru s इन इंटीग्रेटिंग 0 ru t u plus a t v जगह की लिखलो देन dt के dt दैट इंप्लाइज दुईटा फंक्शन আছে इंटीग्रेशन जेन पिला बुझिछ करि पारबो इने तो s सीजीवा फिर s बा 0 ru s इंटीग्रेशन करला लिमिट आके पड़ेला इज इक्वल टू इन देखो u रो काजे थोड़े इंटीग्रेटिंग हवा u dt लिमिट 0 ru t प्लस at रो काजे थोड़े इंटीग्रेशन हवा at dt दैट implies this is s minus s 0 hard limit low limit put करो s minus 0 that means s जब ये u कांस्टेंट बाहरी वाला तो dt रो इंटीग्रेशन में डायरेक्ट पुट कर दो जे t तापर लिमिट आसबा 0 रो t आके बुझलो dt रो काजे खाली तुम इंटीग्रेशन नीचे तो t रो काजे खाली लिमिट हवा और u ब्रैकेट रो बाहर थिबा माने रखिबो जेतु u कांस्टेंट बाहर ब्रैकेट रो बाहर रहला dt रो काजे इंटीग्रेशन नीचे तो t रो भीतर का स्क्वायर ब्रैकेट रहबा और लिमिट हवा प्लस a कांस्टेंट a बाहरी गला तो इंटीग्रेशन ओनली t dt रहबा और t dt रो इंटीग्रेशन में डायरेक्ट कहि दउ छै ना t स्क्वायर बाय 2 एबे a कांस्टेंट बाहर थिबा ब्रैकेट खाली t स्क्वायर बाय 2 भीतर रहबा तो a कांस्टेंट बाहरी गला इधर का खाली इंटीग्रेशन है तो इधर भीतर ही रहबा t स्क्वायर बाय 2 भीतर ही ब्रैकेट भी तो t स्क्वायर बाय 2 ही ब्रैकेट भीतर रहबा बिकॉज़ इधर का खाली इंटीग्रेशन नीचे तो t स्क्वायर बाय 2 खाली ब्रैकेट भीतर रहबा और a टा बाहरी जीवा अब आप केते करि पारो तो डायरेक्ट सॉल्व कर दियो ना सहजा का तो t dt रो इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाय 2 देन t स्क्वायर बाय 2 होला पर इंटीग्रेशन करला पर लिमिट आके पड़ेगा 0 रो t किंतु a भीतर नहीं रहबो ब्रैकेट भीतर माने रखिथिबो a कांस्टेंट ब्रैकेट रो बाहर रहबा हला
तो लास्ट के फाइनली आंसर बाहरी जीवा फाइनली तुम्हारा आंसर बाहरी जीवा f is equal to u into t minus 0 बोल तो t है हमारा सर हाई लिमिट लोअर लिमिट पुट है हमारा t minus 0 means t दूसरा में डायरेक्ट लिख दे u t लिख दिया प्लस a इन तरह हाई लिमिट पुट करो लोअर लिमिट पुट करो a t जगह पे t पुट करो t square by 2 माइनस t जगह पे खाली 0 पुट करो 0 square by 2 that means it is t square by 2 that implies s is equal to ut plus 80 square by 2 80 square by 2 this equals 0 then subject calculate s is equal to ut plus half 80 square this is equation 3 which can be derived किंतु मामू माने देखो इन हम डिस्प्लेसमेंट बाहर करवा আছে नो प्रॉब्लम तो डिस्प्लेसमेंट टाइम बाहर करले वेलोसिटी तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी रू डिराइव हो किंतु ds is equal to v dt हवा किंतु v जगह पे u plus a ठीक है इक्वली बिकॉज़ हमके डेरिवेशन में a दरकार हवा फार्मूला रे a अछि सो a हमरा के v जगह पे u plus a यूज करो तापर dt के dt तापर इंटीग्रेशन करी को चलो लास्ट के इक्वेशन डिराइव की होला तो आज एतकी तो और दुटा इक्वेशन नेक्स्ट क्लास करना।